I would request everybody to take their seat. Pleasant Delhi winter evening. And it's such a great pleasure and a privilege to welcome all of you here in this evening to attend the release of the book Siyahat Meri Siyahi Se by Mr. Atul Chaturvedi, जो कि मेरे मामा हैं, my mother's older brother. This evening has been made unforgettable by the presence of our stellar special guests, the inimitable Dr. Shashi Tharoor, who will be delivering the keynote address much to my personal delight, Padam Shri Dr. Pushpesh Pantji, my Baba, my grandfather's dear student, Sunita Dwivedi ji, and Dr. Heram Chaturvedi, known to me as dear Heram Mama. Your presence tonight makes this special event extraordinary for all of us attending. हेलो। जिस पुस्तक की हम आज यहाँ बात करने आए हैं, वो पुस्तक नहीं है, वो हम भाई बहनों का बचपन है। ये किस्से हमने सिर्फ सुने नहीं हैं, ये किस्से हमने जिए हैं। In fact, one of the clearest and probably earliest memories of my life is Atul Mama narrating these stories, sometimes multiple times, to me and members of my family. I can proudly say that I was, and probably still am, the first victim of Atul Mama's storytelling, one of his first and most captive audiences, sometimes unwillingly, and often in competition with him, to get my views across to him in the middle of his narrations. ये किताब बात करती है सपने देखने की हिम्मत की और उन सपनों को पूरा करने के प्रयासों की। आज शायद सोचने में मुश्किल होगी, पर in the pre-Instagram, pre-internet era, where researching your career or your travel destination was not just a click away, उस ज़माने में इतने वृहद सपने देखना और उन्हें पूरा करने की राह पे चलना, I believe it to be a visionary's work, a true believer's work. I remember how we would wait for Atul Mama to return from his travels, and there he would be laden with gifts for all of us and filled with stories and a sense of wonder and innumerable stories which seemed fantastical and impossible to us. मैंने भूगोल, जियोग्राफी और इतिहास, हिस्ट्री शायद किताबों से कम सीखी और समझी है और अतुल मामा की कहानियों से ज़्यादा सीखी है. The spectacle, the grand spectacle of the changing of the guards at Buckingham Palace, the tales of Egyptian pyramids and Egyptian mummies, the descriptions of the beauty of Paris and Rome. ये मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, किसी YouTube वीडियो में नहीं देखा. ये सब मैंने अतुल मामा की कहानियों में सुना था. कई सालों बाद जब ये जगह मौका मिला अपनी आंखों से खुद जाके देखी, तब भी शायद ये जगह मैंने अतुल मामा की आंखों से देखी और शायद उन्हीं कहानियों की गूंज मेरे कान में तब भी थी. दुनिया बड़ी शानदार और हमारे अनुभव के दायरे के बाहर भी बहुत बड़ी है. ये मैंने अतुल मामा की इन्हीं किस्सों और कहानियों से सीखा और वही किस्से आज इसी पुस्तक में आपके सामने प्रस्तुत हैं. A sense of wonder, inclusivity and diversity that I feel are integral parts of my personality stem from these tales of Atul Mama. मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि किताब पढ़ें और खासकर अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उन्हें पढ़ाएं. उनके सपनों को भी वही पंख मिलेंगे जो मुझे मिले थे. They will also experience the same sense of wonder and awe that is instilled into me till this day. मेरी और अतुल मामा हम दोनों की एक फेवरेट बुक है, रूसी लोक कथाएं, रशियन फोक टेल्स. उसकी एक लाइन है, जाओ वहाँ न जाने कहाँ, लाओ उसे
न जाने किसे। मेरी समझ में इस पुस्तक का सार शायद यही है, टू बोल्डली गो वेयर इट वॉज कंसिडर्ड इम्पॉसिबल बाय मैनी टू गो बिफोर। With this, I would like to conclude my address and invite on stage our moderator for the evening, Mr. Chandrasekhar Verma, to take the program forward. Mr. Verma is a renowned motivational speaker and an author himself. He has inherited literature from his illustrious grandfather, Padma Bhushan Shri Bhagwati Charan Sharma, and also his father, Shri Dhirendra Verma. He has this unique distinction of having command over Hindi, English, and Urdu, and is the author of the English bestseller novel, Corners of a Straight Line. Incidentally, this book was launched by none other than the great inimitable Javed Akhtar. His collection of Hindi stories, 14 Left, 14 Right, was included in the top 10 books of 2023 by Sahitya Aaj Tak. His Urdu ghazals can be found on Rekhta. He is a known name in the literary circles and has been invited to various literary festivals all across India. He has hosted many literary and cultural shows across the country and has been awarded on many occasions by the government of UP and other organizations. His performances as a poet have been appreciated in many cities. It is my pleasure to invite, ladies and gentlemen, Mr. Chandrasekhar Verma. Thank you, ladies and gentlemen. It's been a true privilege. Have a great evening. Enjoy the book. And if I may, I would like to take this opportunity to get Atul Mama's signature on my copy, my purchased copy, bona fide. Thank you. गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। शाम की इससे ज़्यादा शानदार शुरुआत नहीं हो सकती थी जितनी ईशा ने कर दी है, और बिना समय बर्बाद किए मैं प्रोसीडिंग्स को शुरू करता हूं विथ योर परमिशन सर। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं आज के जो हीरो हैं, आज के जो जिनके वजह से आप सब यहां पर एकत्रित हुए हैं, तो ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए श्री अतुल चतुर्वेदी जी का। इसके बाद मैं इनवाइट करूंगा आलिम ज़वेरी साहब, यदि वो यहाँ पर हैं, और साथ में मैं प्रतीक सिंह जी को भी आमंत्रित करूंगा कि वो उनको बुके और गिफ्ट दें। नहीं है, ठीक है। इसके बाद आई विल नाउ वांट टू इनवाइट डॉक्टर अपूर्व चतुर्वेदी, और अर्पित जी आप भी मंच पे आ जाएं। डॉक्टर अपूर्व चतुर्वेदी। Now I would invite Dr. हेरम चतुर्वेदी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है मंच पर। हेरम चतुर्वेदी जी का जन्म 31 दिसंबर 1955 को इंदौर में हुआ था। उनकी प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा तक सब इलाहाबाद में संपन्न हुई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सन 76 में बीए तथा सन 78 में एमए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। जनवरी 1980 से इसी विश्वविद्यालय में अध्यापन इतिहास विभाग के प्रोफेसर के रूप में कार्यरत। आपने 8 पुस्तकों का लेखन किया है
और आपको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का वर्ष 2003 और 2005 का आचार्य नरेंद्र देव पुरस्कार प्राप्त है। दिनमान, टाइम्स, संडे ऑब्जर्वर, साहित्य अमृत, मनोरमा, गंगा जमुना सहित अनेक पत्रिकाओं में लेख आदि प्रकाशित हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। और दुनिया छोटी सी है। जब मैंने हेरम जी से उनका परिचय पूछा तो बोले, बेटा मैं तुम्हें बहुत सालों से जानता हूँ और मुझे बहुत बचपन से जानते हैं। हम लोग हमारे ताऊ जी और हेरम साहब का परिवार इलाहाबाद में पड़ोसी थे। और मैंने इनसे पूछ लिया कि आपको क्या क्या मेरे बारे में मालूम है। नाउ आई इनवाइट डॉक्टर सुनीता द्विवेदी। शी इज अ दिल्ली बेस्ड ऑथर एंड अ सिल्क रोड ट्रैवलर। अभी हम इनसे काफ़ी बातचीत करेंगे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू सी सिल्क रोड ट्रैवलर. She has authored 5 travelogues on Buddhist heritage sites, including In Quest of the Buddha and Buddha in Gandhara. Her work involves traveling and obviously capturing the Buddhist sites through her camera. मैं इनवाइट करता हूँ श्रीमती रचना चतुर्वेदी जी को, नीता चतुर्वेदी जी को, जो सुनीता जी को बुके और गिफ्ट देंगी, और साथ ही में उपासना सिंह जी को जो कि हेरम जी को बुके देंगे। अब मैं जिनको बुलाने जा रहा हूं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। एक बहुत ही जाना पहचाना चेहरा है। लिटरेरी सर्कल्स में, टेलीविज़न में, कई जगह पर आप इनको देखते और सुनते हैं। आई वेरी प्राउडली इनवाइट प्रोफेसर पुष्पेश पंत ऑन स्टेज, a renowned academician, food critic and a historian with a teaching career spanning over 4 decades at JNU. He has authored over 50 books on cuisine and foreign policy. A regular contributor to various publications, he has also anchored TV programs and produced documentaries. His book, India, the Cookbook, was nominated as one of the best cookbooks of the year by New York Times in 2011. He was conferred with the Padam Shri in 2016. His recent books include Lazzat Nama, what an interesting name, and From the King's Table to Street Food. पुष्पेश जी, अभी हम इन बारे में आपसे बात करेंगे। Now I invite Aishwarya Chaturvedi and Dhirendra Pandey to felicitate Dr. Pushpesh Pant. And now, ladies and gentlemen, I was traveling to Delhi this morning from Lucknow, and there was a lady sitting next to me, जिन्होंने बातों बातों में मुझसे पूछा कि मिस्टर वर्मा आप क्या करते हैं। तो मैंने कहा, मैडम मैं दिल्ली जा रहा हूँ अभी, आप कभी बम्बई चलें तो मुझे बताएं। तो उन्होंने पूछा क्यों? तो मैंने कहा 40 मिनट में ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि मैं क्या क्या करता हूँ। मुंबई का सफ़र 2 घंटे का है तो शायद उसमें कुछ बता पाऊँगा। यदि उन्हीं महिला को शशि थरूर साहब के बारे में जानना होता
तो शायद न्यूयॉर्क तो जाना ही पड़ता। फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि कुछ शब्दों में मैं थोड़ा बहुत डॉक्टर थरूर के बारे में बता सकूं, और ये मेरा सौभाग्य है सर कि मैं आपके बारे में बोल रहा हूं। An author, politician, and former international diplomat, Dr. Tharoor has not several years, but several words of experience. At present, a fourth-term member of parliament, he represents the parliamentary constituency of Thiruvananthapuram, Kerala, in the Lok Sabha. A proud member of the Indian National Congress, he has served as a Minister of State for External Affairs and Minister of State for Human Resource Development in the Government of India during the second term of UPA government. At present, the chairperson of the Parliamentary Standing Committee on Chemicals and Fertilizers. He has previously chaired the Parliamentary Standing Committees on External Affairs and Information Technology. Sir, I was trying to count the number of books you've written. It was a never-ending list, but I could count up to 28. 26. Okay, all right. And that reflects on my mathematics. That's not very good. So I very proudly invite Dr. Tharoor on stage. Ladies and gentlemen, please give him a big round. All right, probably. And I invite Mr. Amog Maheshwari to present Dr. Tharoor the bouquet, and also Srimati Archana Chaturvedi to give him the gift. Mr. Amog Maheshwari doesn't need any introduction. Raj Kamal Prakashan or Lok Bharati का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अमोघ जी यहाँ पर। और अमोघ जी, चूंकि आप मंच पर हैं तो मैं इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपना स्वागत भाषण यहाँ पर हम सबके लिए प्रस्तुत करें। मैं अमोघ जी के बीच में 1 मिनट को आऊँगा और चंद्रशेखर वर्मा जी का स्वागत मैं करूँगा। स्वागत भाषण देने से पहले इनका स्वागत हो जाना चाहिए। एंड आई रिक्वेस्ट मिस्टर अर्पित चतुर्वेदी जी टू प्लीज प्रेजेंट हिम द बुके, एंड ऑल्सो मिस्टर विश्वराज सिंह जी फॉर द गिफ्ट। जी, मैं बुला लेता हूँ प्रदीप सिंह। आलिम जवेरी साहब आ चुके हैं, मैं उनको भी मंच पे आमंत्रित करता हूं, और मैं इनवाइट करता हूं प्रमोद पंत जी को और लोकमन्यु जी को स्टेज पर, और अभीश चतुर्वेदी जी आप भी आ जाइए, आपका भी स्वागत है।
और अब मैं स्वागत भाषण के लिए अमोघ जी को आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार। माननीय अतुल जी, शशि थरूर जी, पुष्पेश पंत जी, सुनीता द्विवेदी जी, हेरम चतुर्वेदी जी, चंद्रशेखर वर्मा जी और सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जन, सबसे पहले मैं आप सभी का इस लोकार्पण कार्यक्रम में लोक भारती प्रकाशन की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज पुस्तक के लोकार्पण के बहाने हम एक अनुभव संसार के साक्षात्कार करेंगे जो हम सब के लिए एक खास और ख़ासकर युवा पीढ़ी के लिए एक दुर्लभ प्रेरणा हो सकती है। अतुल चतुर्वेदी जी अपनी पुस्तक सियाहत मेरी शाही को एक संस्मरण पुस्तक के तौर पे बता रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यह एक गुजरे समय का लेखा जोखा है। लेखा जोखा ही नहीं, इसमें उनके विचार आने वाले समय, आने वाली पीढ़ी के लिए एक कंपास की तरह ये पुस्तक है, क्योंकि ये पुस्तक व्यापार के नितांत व्यवहारिक दुनिया में अपने आदर्श और संस्कृति मूल्य से हटे बगैर एक नौजवान को अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कहानी है। अपने सपने को पूरा करना, उसको देखना, उसको पूरा करना और सभी के लिए एक प्रेरणा के तौर पे सामने आते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जब इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो मेरी बात को सच पाएंगे। मैं पुनः आप सबका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार अमोघ जी। और अब उस क्षण के लिए जिसके लिए हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, वो क्षण आ गया है और मैं आग्रह करूँगा मंच पर उपस्थित सभी विद्यार्थी जनों से, सभी विद्वान जनों से कि वो इस पुस्तक का लोकार्पण करें। अतुल जी, आपका मोमेंट है और ज़रूर, बिल्कुल। देखिए, ये कहने को तो उनकी पहली रचना है, लेकिन पहली रचना अब मंच पर आ रही हैं। श्रीमती रचना चतुर्वेदी जी। किसी भी लेखक के जीवन में ये क्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है और आप लोग अपनी तालियों से अतुल जी को बधाई दे सकते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले अतुल जी से पूछा था कि सर, क्या आपको एंजाइटी महसूस हो रही है? तो उन्होंने ये कह दिया कि सारी एंजाइटी मैं यानी मुझे ट्रांसफ़र कर चुके हैं, तो अब वो एकदम फ्री हैं और मेरा बर्डन हालांकि बढ़ गया है उसकी वजह से। पर सर, बहुत बहुत बधाई आपको। और अब मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं डॉक्टर शशि थरूर को टू डिलीवर हिज की नोट एड्रेस। राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन। नमस्कार, डिस्टिंग्विश्ड ऑडियंस। मैं माफ़ी मांग रहा हूँ टू बिगिन विद कि मैं I'm going to inflict my Hindi on you all. I'll do my best. लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा दोस्त अतुल चतुर्वेदी ने इनका पहला किताब हमारे सामने पेश की है। ये किताब एक ऐसे नौजवान की कहानी है जो 1990 के दशक में अपने पारिवारिक कारोबार से अलग होकर कुछ नया करने का ख्वाब देखा है। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान में आर्थिक हालात बदल रही थे और लिबरलाइजेशन का सिलसिला शुरू ही हुआ था।
ये किताब हर उस नौजवान की उम्मीदों और ख्वाहिशों की झलक पेश करती है जो साहस और मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और नई बुलंदियों को छूने का इरादा रखता है। ये सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस भारतीय नौजवान का चित्र है जो अपनी मेहनत और लगन से अपनी पहचान बनाना चाहता है। हमारे जो लिबरलाइजेशन के बाद के दौर में एमएसएमई क्षेत्र में, एक्चुअली एमएसएमई क्षेत्र की तरक्की को समझने के लिए ये किताब बेहद अहम है। कानून बनाने वाले नीतियों तो बना सकते हैं, लेकिन उनकी कामयाबी उन लोगों पर निर्भर करती है जो पहले कदम उठाकर नए मौके तलाशाते हैं और उनका फ़ायदा उठाते हैं। ये लोग नई राहें बनाते हैं और दूसरों के लिए मिसाल कायम करते हैं। किताब में ये बहुत आसान और दिलचस्प तरीके से बताया गया है कि किस तरह छोटे छोटे व्यवसाय शुरू होते हैं, मुश्किलों का सामना करते हैं, आगे बढ़ते हैं और फिरोज़ाबाद जैसे छोटे शहरों के सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल को बदल देते हैं। जब हम सब चाहते हैं, मेरे ख्याल में हम सब सोचते हैं कि भारतीय कारोबार चीन जैसे देशों के जैसे से कैसे मुकाबला कर सकते हैं, तो एमएसएमई का विकास बहुत ज़रूरी लगता है। ये किताब हमें दिखाती है कि कामयाबी के लिए मेहनत, नई सोच और सही तरीके से काम करना कितना ज़रूरी है। ये कहानी नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक रास्ता दिखाती है। इसमें बताया गया है कि कैसे एक साधारण शुरुआत से हिम्मत और मेहनत के साथ एक बड़ा और सफल कारोबार खड़ा किया जा सकता है। ये सिर्फ अतुल जी की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि ये भी सिखाती है कि मुश्किलों का सामना कैसे किए जाए और हर बार नई ताकत के साथ ये भी सिखाती है कि मुश्किलों का सामना कैसे किया जाए और हर बार नई ताकतों के साथ वापसी कैसे किया जाए। इस किताब से फ्यूचर बिजनेस पर्सन्स ये समझ सकते हैं कि दुनिया के बड़े बाज़ार कैसे काम करते हैं और उन बाज़ारों में अपनी जगह कैसी बनाई जा सकती है। इस किताब से पाठक खुद को नए कारोबार की शुरुआत की कहानी का एक हिस्सा पाते हैं जो ग्लास और होम डेकोर के एक्सपोर्ट्स पर आधारित है, जिसने उत्तर प्रदेश की फिरोज़ाबाद की आर्थिक हालात को बेहतर बनाने में बहुत मदद की है। इन मेमोइर्स जो हमारे सामने है, सियाहत मेरी स्याही से, इनमें एक नौजवान के एक्सपोर्ट बिजनेस को लेकर सामने आई समस्याओं और उन समस्याओं के हल को बहुत ही विस्तार के साथ बताया गया है। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, हॉलैंड, बेल्जियम, इटली और अमेरिका जैसे देशों में व्यापारियों से डील करने और व्यापार शुरू करने की तरीका को बहुत रोचक और सरल तरीके से समझाया गया है। जैसे अतुल ने जर्मनी के फ्रैंकफर्ट फेयर में हाका ट्रेडिंग नाम के हॉलैंड के व्यापारी को कैसे मनाया और उनसे ऑर्डर लिया, ये एक बेहतरीन उदाहरण है। एक दिलचस्प किस्सा है जब अतुल चतुर्वेदी की मुलाकात बहरीन में एक ग्लास बीड्स के बिजनेसमैन से हुई जो आंखों से देख नहीं सकती थी। हाँ, कभी भी रोलाने की बात भी है जब आंखों से देख नहीं पाते, लेकिन क्या करूं। लेकिन वह सिर्फ स्पर्श से मोतियों की सारे फीचर्स और फ्लॉज पहचान सकता था। तो ऐसे व्यक्ति से मिलने के बाद बहरीन की कहानी लिखा है। फिर कतर के दोहा में अतुल ने एक अरब शख्स से मिला
एक अरब शेख के साथ ने केवल हैंडीक्राफ्ट का व्यापार शुरू किया, बल्कि उसकी अच्छी दोस्ती भी बनाई। इस घटना से यह समझ आता है कैसे व्यापार व्यक्ति से व्यक्ति जैविक आधार पर वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को विकसित करने के लिए एक आधार के रूप में काम कर सकता है। अतुल बताते हैं कि 1990 के दशक में एक युवा भारतीय ये सारे देश, यूरोपियन देशों के बिजनेस पर्सन्स के साथ काम शुरू किया है, उनसे सीखा और अपना बिजनेस को बढ़ाया। इजिप्ट में पेपरस इंस्टीट्यूट, गाज़ा की पिरामिड्स, कैरो का गाज़ा नहीं गीज़ा की पिरामिड्स, कैरो का सिटी ऑफ द डेड और फॉर्मर प्रेसिडेंट अनवर अल सदात की कब्र का विवरण राजनीतिक, सामाजिक और पर्यटन उत्साही लोगों को समान रूप से आकर्षित करेगा। उस समय एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कोई निश्चित मार्ग नहीं था, आपको याद है उस ज़माना। ना कोई कैटलिस्ट, इंक्यूबेटर या वेंचर फंड था, आजकल ये सब है। अतुल ने अपनी मेहनत और जिज्ञासा से नए मौके खोजे, अपना बिजनेस शुरू किया और एक पूरे इंडस्ट्री और शहर के लिए एक्सपोर्ट्स का मार्केट खोला। जी, बधाई देने लायक है, और ये सब इस किताब में आप पढ़ सकते हैं। अतुल ये भी बताता है कि शुरुआत में जब जानकारी और रिसोर्सेज शामिल थे, विदेशी व्यापारी भारतीयों के साथ व्यापार करने में हिचकित चाहते थे, लेकिन जिससे बिजनेस मीटिंग्स के लिए अपॉइंटमेंट प्राप्त करना मुश्किल हो जाता था। हालांकि समय के साथ नज़रिया बदल गया और भारतीय व्यापारियों ने विदेशों में सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया। ये मेमोir एक युवा भारतीय की इंटरनेशनल बिजनेस में पहचान बनाने और सम्मान पाने की सफल यात्रा को दर्शाता है, जिसने कई भारतीय युवाओं को अपने सपनों को साकार करने के लिए मेरे ख्याल में प्रेरित किया। अतुल के जीवन की कहानियाँ भारतीय संस्कृति में परिवार के महत्व को दिखाते हैं। आज भी हम परिवार के महत्व देख सकते हैं जो शामिल हैं यहाँ हमारे सामने। ये बताती है, इस किताब में बताती है कि परिवार और दोस्तों के साथ से हर समस्या हल हो सकती है, और हर महत्वपूर्ण ओकेजन जो है, जो बुक रिलीज़ का है, उसमें भी दोनों की बड़ी ज़रूरी है, परिवार और दोस्त। आज के समय में जब भारत के युवा सरकारी नौकरियों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, ऐसे किस्से और ज़रूरी हो जाते हैं। ये नई पीढ़ी को नौकरी खोजने वाले से नौकरी देने वाले जॉब सीकर्स में बदल के जॉब गिवर्स में बदलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जैसा कि अतुल अपनी किताब में कहते हैं। ये मेमोइर्स ये भी बताते हैं कि कैसे 1990 के दशक की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार और डॉक्टर मनमोहन सिंह, हमारे जो उसका फाइनेंस मिनिस्टर की नीतियों ने भारत के छोटे शहरों के युवाओं को भी लाभ पहुंचाए। ये उदाहरण देते हैं कि कैसे छोटी कंपनियां शुरू होती है, बढ़ती है और छोटे शहरों जैसे फिरोज़ाबाद को फिजिकली और कल्चरली बदल देती है। अतुल जी के यात्रा, ये जो मेमोइर्स है, क्लियरली दिखाते हैं, स्पष्ट से दिखाते हैं कि अगर सरकार की नीतियां सही हो तो बिना प्रचार के भी वे आम आदमी को लाभ पहुंचाती है और बिजनेस इंडस्ट्री पर उनका सकारात्मक असर पड़ता है। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की याद में लिखा है, और मेरे ख्याल में अतुल जी ये संदेश आज के वर्तमान युवाओं को भी पहुंचाना चाहता था। जहां इकोनॉमिक्स जैसे विषय अक्सर एब्स्ट्रैक्ट और साधारण जीवन में दूर नज़र आते हैं, अतुल जी का जीवन एक मजबूत और भरोसेमंद नज़रिया प्रदान करता है। ये यात्रा वृतांत, प्रिंसिपल और प्रैक्टिस के बीच का फर्क ख़त्म करता है और दिखाता है कि आर्थिक सिद्धांत असली ज़िंदगी में कैसे काम करते हैं। एक नए कारोबार की शुरुआत का जिक्र करता है जो उस
जो उस वक्त एक स्टार्टअप था, और ये पुस्तक एंटरप्रेन्योरशिप और आर्थिक विकास पर अहम नज़रिया देती है। अतुल जी का पहली यात्रा, ये ट्रैवल किताब भी है, पहली यात्रा सितंबर 1991 में हुई थी, और उन्हें यात्रा में अतुल ने इन देशों का दौरा किया, यूएई, बहरीन, कतर, इजिप्ट, इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, यूनाइटेड स्टेट्स, और इतने लंबे लिस्ट में देता हूँ क्योंकि इतने सारे जगह और हर देश में कई जगह गए हैं, और उसका भी विवरण उन्हें किताब में दिखाएं। ये पुस्तक उन लोगों के लिए प्रेरणा का साधन हो सकती है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए काम करना चाहते हैं, और ये दर्शाती है कि कैसे एक युवा भारतीय ने अपने सपनों को साकार करने के लिए काम किया। एक और बार मेरे बधाई, कंग्रेचुलेशंस टू अतुल, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत शानदार किताब है। मैं खुश हूँ कि आप लोग के सामने, एक फुल ऑडियंस के सामने, इस किताब का मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर इट्स सक्सेस अतुल, नाउ एंड ऑलवेज। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक बार ताली तो इस बात पे बजनी चाहिए कि डॉक्टर थरूर ने इतनी सुंदर हिंदी में किताब के बारे में बातचीत की। मेरी एक हिंदी की किताब का जिक्र ईशा ने किया था। मैं डर रहा था कि मैं डॉक्टर थरूर को हिंदी की किताब गिफ्ट करूं या ना करूं, पर मुझे यकीन हो गया है कि मैं ये हिम्मत कर सकता हूं। हम चाहते हैं कि या अगर अनुपम त्रिवेदी जी सभागार में उपस्थित हों तो मंच पर आ जाएं, और मैं अनिल जैन और राम कुमार गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि वो स्वागत करें अनुपम त्रिवेदी जी का। अनुपम जी ने एक बाइंग एजेंट के रूप में अतुल जी के बिजनेस को प्रोत्साहन दिया, और इसीलिए अतुल जी चाहते थे कि अनुपम जी आएँ। और अतुल जी, मैं आपको बताऊं कि आज बहुत सारे कोइंसिडेंस हो रहे हैं। अनुपम जी, अतुल जी, अनुपम और हम भी यूनिवर्सिटी में साथ पढ़े हुए हैं। अब हम एक छोटा सा डिस्कशन हमारे मंच पे जो माननीय सदस्य उपस्थित हैं उनके साथ एक छोटा सा संवाद करेंगे किताब के बारे में। और आप सबसे भी आग्रह है कि अपने प्रश्नों को तैयार रखें। यदि आपके मन में कोई भी जिज्ञासा है, पुस्तक के बारे में आप बात करना चाहते हैं अतुल जी से उनकी पुस्तक के बारे में, तो अवश्य अपने प्रश्नों को तैयार रखिए। हम चाहेंगे कि आपके प्रश्नों को भी इस सत्र में समाहित किया जा सके। तो मैं अपना स्थान लेता हूं और एक छोटा सा डिस्कशन शुरू करता हूं। हेलो अतुल जी, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? जी। अतुल जी, बधाई आपको सब लोग दे ही चुके हैं। थैंक यू। एक बार फिर आपको बधाई। और एक मेरा शेर है कि चांद से दूरी बढ़ाना चाहता है, चांद से दूरी बढ़ाना चाहता है, एक सितारा झिलमिलाना चाहता है। और वो शेर जिसके लिए मैं ये बात कह रहा हूं कि दश्त कहते हैं वीराने को, कि दश्त में यूं ही नहीं भटका मुसाफिर, दश्त में यूं ही नहीं भटका मुसाफिर, वो नया रास्ता बनाना चाहता है। तो ये जो भटकने का दौर था, ये जो भ्रमण का दौर था, ये जो घुमक कड़ी थी, उस पे मैं कुछ आपसे सवाल पूछूंगा सर। एक और शेर आपको थोड़ा सा डराने के लिए कह रहा हूं कि
पहले वो हाल चाल पूछेगा, पहले वो हाल चाल पीछे पूछेगा, फिर वो कुछ मुश्किल सवाल पूछेगा। तो सबसे पहला सवाल ये है सर कि जैसा पुस्तक में मैंने देखा आपने 13 देशों का भ्रमण किया। 13 संख्या थोड़ी सी अजीब सी कही जाती है हमारे समाज में, तो ये आपके जहन में आया था ये संयोग से 13 देश हो गए? और कितना सौभाग्यशाली था ये 13 देशों का भ्रमण? देखिए, पहली बात तो ये है कि सफ़र अभी जारी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जब मैं इन देशों में काम के लिए जा रहा था तो गिनती मेरी ये थी कि ऑर्डर कितने और डॉलर कितने, देश नहीं गिन रहा था। बहुत बढ़िया जी। तो ये संयोग था कि वो 13 देश हुए। ये संयोग है और आगे बढ़ने को 13 पार तो करना ही होगा ना जी, आएगा ही 13, बिल्कुल। अच्छा सर, आपने कई जगह पुस्तक में एक अलग अलग शब्दों में इस भाव को लिखा है कि लेकिन वो किस्सा फिर कभी। तो जैसा आपने कहा कि सफ़र, एक तो आपका सफ़र, देशों का सफ़र जारी रहेगा, दूसरा मुझे लगता है कि पुस्तक लिखने का सफ़र भी जारी रहेगा। देखिए, जैसी हौसला अफजाई हो रही है तो मैं तो ज़बरदस्ती अपनी भांजी ईशा को बैठा के किस्से सुनाता था, और अब हौसला अफजाई है तो ये तो मान के चलिए कि किताबें और आएंगी। बहुत बढ़िया सर, बड़े मज़ेदार किस्से मैंने पढ़े और आपने बड़े सारे भावों को एक साथ उनको समाहित किया। एक किस्सा है जो दुर्गा प्रसाद जी वाला है और जो आपने अपने पूर्वजों के बारे में बताया है, बहुत रोचक किस्सा है। मैं चाहूँगा सर कि अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा बात करें कि वो हुआ क्या था। मैं संक्षेप में बताऊं कि जब फिरोज़ाबाद नहीं हुआ करता था तो वहाँ महसूल वसूलने का, महसूल एक किस्म का टैक्स था, वो ठेका हमारे पूर्वजों पर था। एक मुगल काल की बात है, एक कारवां आया, उनसे महसूल मांगा गया। उन्होंने कहा कि ये बादशाह की बेगम का सामान जा रहा है, इसमें महसूल नहीं मिलेगा। तो हमारे बुज़ुर्ग जो भी टीम थी उन्होंने कहा उसका फरमान दिखा दीजिए। बहरहाल वहाँ बहस हुई तो जो हमारे बुज़ुर्ग थे उन्होंने गरम गज जो लोहे का होता था वो उन बनारसी साड़ियों में, कपड़े में दगवा दिया और कहा महसूल वसूल हो गया। जिसकी प्राइस ये पे करनी पड़ी वो राजा टोडरमल का कारवां था, जैसा गजेटियर ऑफ फिरोज़ाबाद भी बताता है। प्राइस ये पे करनी पड़ी कि इसको एक तरह से रिबेलियन माना गया और हम लोगों के यहाँ हमारे बुजुर्ग को बंद कर दिया गया। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा बता दूंगा तो आप लोग किताब कैसे पढ़ेंगे। तो बहरहाल बादशाह अकबर के यहाँ वो मामला गया और ये हुआ कि ये एक सीधे साधे आदमी है, एक दिन खाना बना रहे थे, उनकी लकड़ी गीली थी तो उसमें उन्होंने साफ़ा जला दिया, उसमें थोड़ा सोना निकला। वो जब बादशाह अकबर की बेगम पर गया कि एक चतुर्वेदी पंडित जी यहाँ ब्रज इलाके के बंद हैं, तब वहाँ सुनवाई हुई तो उन्होंने कहा कि साहब महसूल भी तो हम आपके ही बिहाफ पे वसूल कर रहे थे, अगर आपका फरमान नहीं था तो हम इसकी कैसे इसको अवॉइड कर देते। तो बादशाह प्रसन्न हुए और उन्होंने सब रीइंस्टेट किया। मैंने बहुत शॉर्ट में इसलिए बताया कि इसमें गामा पहलवान का भी किस्सा है, लेकिन वो या तो फिर कभी या किताब पढ़िए। बट मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बहुत इस तरह के बहुत सारे रोचक किस्से इस पुस्तक में आपको मिलेंगे। सर, एक सवाल ये था कि हालांकि आपका परिवार पूरा उपस्थित है, पर तब भी आदमी की ज़िंदगी में पहला प्रेम तो होता ही है। तो पहला प्रेम ज़्यादा एक्साइटिंग था या पहला ऑर्डर? देखिए, निश्चित तौर पर नहीं, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, क्योंकि पहला प्रेम जो है वो जिंदगी और 7 जन्मों के लिए है, तो उसके महत्व की तो बराबरी नहीं है। वाह, ऑर्डर तो आते जाते रहेंगे। क्या बात, वाह। लोग लाजवाब होते हैं, मैं लासवाल होता जा रहा हूं। सर, एक दो जगह आपने मेंशन किया है कि कुछ भारत की छवि को लेके लोगों के मन में संदेह था कि यहाँ की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तो आपको एक स्ट्रगल, आपको संघर्ष करना पड़ा कि
भारत से आए हैं आप तो बहुत अच्छा माल नहीं मिलेगा, शुरू में अच्छा माल दिखा देते हैं, बाद में फिर वो अच्छा नहीं करते हैं। तो इस चैलेंज को आपने कैसे हैंडल किया? देखिए, जब मैं इस व्यापार के लिए निकला तो ना तो मुझे ये मालूम था कि मैं क्या बेचूंगा, क्योंकि फिरोजाबाद से एक्सपोर्ट ही नहीं होता था। ना मुझे ये मालूम था कि मैं कहाँ बेचूंगा। और जब मैं बाहर पहुंचा तो मुझे ये भी मालूम पड़ा कि हम लोगों को रिलायबल नहीं माना जाता, इंडियन व्यापारियों को, कम से कम होम डेकोर के क्षेत्र में। व्यापारी बैठा के बात करने को तो छोड़ दीजिए, अपने यहाँ कई बार घुसने नहीं देते थे। और 60-60, 65-65 किलो वजन के सैंपल लाद के मैं घूमता था, ऐसा दरवाजे खटखटाता था दुकानों पर, फिर ट्रेड फेयर्स में। और एक मैंने किस्सा इसमें लिखा भी है कि एक बार ऐसा भी हुआ कि पेरिस में हमारा सूटकेस वगैरह के पहिए टूट गए। मैं क्या करता, तो मुझे मेरे सुभाष मामा, जो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं मुख्य एक्सपोर्ट के काम के, उनका एक कहा हुआ याद आया कि इफ यू वांट टू बिकम एन एक्सपोर्टर यू हैव टू बिकम अ पोर्टर फर्स्ट। तो मैंने अपने सिर पर वो लादा, क्योंकि मैं क्या करता। तो ऐसे कई वाकये हुए। धीरे धीरे हमने विश्वास दिलाया, जो माल भेजा उसकी क्वालिटी का पालन किया, टाइमिंग का पालन किया। और जैसा डॉक्टर थरूर ने भी बताया कि नीतियां बदल रही थीं, धीमे धीमे हम लोगों से ऐसा भी समय आया कि 10 साल बाद यूरोप के बायर ये पूछते थे कि मिस्टर चतुर्वेदी, अगले साल का फैशन ट्रेंड क्या है, कलर क्या है, फिनिश क्या रहेगी। क्या बात, वाह, इसीलिए मैंने कहा ये तुमसे आप तक का सफर था। बहुत बढ़िया सर। सर, ये जो आपने लाइन बोली, जो आपके मामा से आपने सीखी कि टू बी अ एक्सपोर्टर यू हैव टू बी अ पोर्टर, जब ये किस्सा आपने किताब में लिखा तो मेंशन किया था कि एक लड़की ने आपको देखा जी, और उसने थोड़ी शी गिगल्ड, बहुत कस के हंसी। फिर क्या हुआ सर उसके बाद? वो बहुत कस के हंसी, और मुझको तो पहले उसने आवाज दी तो मेरी समझ में ही नहीं आया कि पेरिस में तो कौन आ गया मुझे आवाज देने वाला। लेकिन हम लोग थोड़ी देर पहले ही मिले थे, तो उसको मैंने जब एक्सप्लेन किया तो उसने मेरी बहुत मदद की। और व्यापार के लिए दुकानों पर भी मुझे ट्रांसलेशन की बड़ी कुछ देशों में समस्या थी। आज तो सब जमाना बदल गया है। तो ऐसे मददगार, वो जैसा मैंने कहा कि जब आप कोई काम सच्चे दिल से करना चाहें तो दुनिया में घर से लेके दोस्तों तक और दोस्तों से लेके सारी दुनिया में अपरिचित तक मददगार मिल जाते हैं। मुझे भी मिलते रहे। वाह सर। सर, इसी से एक सवाल, और ये शायद आखिरी सवाल है, फिर हम बाकी लोगों से बात करेंगे, कि आपको इस्माइल शेख जैसे लोग भी मिले और मैगदी जैसे लोग भी मिले, तो किस रेशियो में मिले? इस्माइल शेख एक बहुत ही नेक दिल इंसान सर को मिले, और मैगदी एक ऐसा व्यक्ति था जिससे कमाल की बात यह कि एक दिन उसके रूट होने के बावजूद अगले दिन भी आपने उसके साथ समय व्यतीत किया। तो हर तरह के लोग मिले होंगे, तो ज़्यादा अच्छे लोग मिले या मैगदी जैसे लोग मिले? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि लोग तो अच्छे ही होते हैं। मैगदी जो थे वो अपना जीवन यापन का कर रहे थे, और मैंने उस किस्से को हाईलाइट इसलिए किया है कि मैं आगरा के पास रहता हूँ। हम लोग अखबारों में कई बार पढ़ते हैं कि विदेशी टूरिस्ट आते हैं और उन्हें गाइड लोग तरह तरह से बेवकूफ़ भी बनाते हैं, कई बार उनकी जान पर भी बनाती है। तो जब आप किसी दूसरे देश में अकेले ऐसे फंसते हैं, या ना आप भाषा जानते हैं ना किसी को जानते हैं, और ऐसा अनुभव होता है आगरा में, उसके लिए एक शब्द है लपका। तो ये जब भी आपने आपको लिखा है इसके बारे में। ऐसे लोग मिल जाते हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि कम से कम इस किताब के पढ़ने वालों के माध्यम से लोगों पर ये मैसेज जाए कि भाई हमारे यहाँ तो कहा भी गया है कि अतिथि देवो भव, तो ना सही देवो भव, लेकिन वो आया है तो बुरा नहीं, अनुभव अच्छा तो लेके जाए जिससे दोबारा लोगों को आने की कहे। बहुत अच्छा संदेश सर। और जो आपने आगरा के बारे में बात की, वहाँ पे मुझे भी एक्सपीरियंस है कि यदि आप ताजमहल को गाइड के साथ देखेंगे तो ताजमहल के बारे में आपको वो बातें बताएगा जो शाहजहां को भी नहीं मालूम थी। सर, आपके प्रश्न खत्म हो गए हैं। मैं माफी चाहूंगा, एक चीज जरूर कहना चाहता जी हूं। जी। ये किताब मेरे लिए एक तो इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण थी कि मेरे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर
ने 1890 के आसपास हिंदी भाषा में जापान का इतिहास लिखा था, वाह वाह छप वाह, नहीं वाह। पाया। मेरे ग्रैंडफादर ने बोधा कवि एक हुए हैं, उन पर पूरी रिसर्च थीसिस लिखी थी, छप नहीं पाई। तो किताब लिखना कितनी मेहनत से लिखता है आदमी, लेकिन उसका सपना होता है कि वो छपे। तो मुझको इस चीज़ का लगता था कि ये मेरी जो 4-5 जनरेशन से प्रयास हो रहा है, हालांकि मैं आपको ये बता दूं मेरे बेटे बेटी भांजे भांजी सब किताब लिख चुके हैं, लेकिन उसको मैं नहीं गिनूंगा इसमें, क्योंकि जनरेशन तो ऊपर से चल रही है। तो मैंने जो किताब लिखी, इसलिए मैं चाहता था कि एक तरह से मेरे एंसेस्टर्स को ट्रिब्यूट है कि मैंने एक किताब लिखी और वो छप भी पाई। दूसरा ये कि मेरा जिंदगी का अनुभव व्यापार में उस सब में ये रहा कि अगर आपके साथ परिवार है और आपके साथ दोस्त है, मैं बहुत लकी हूं कि मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं जी, और फिर नए भी बनते हैं, लेकिन ऐसे वेल विशर्स, ऐसे लोग हैं जिसकी कई कहानियां इस किताब में हैं। तो आप कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं। थैंक यू। पंत जी, मैं आपसे मुखातिब हूँ। एक उत्तर प्रदेश में कहावत चलती है कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी। तो आपसे एक बातचीत के दौरान आपने बताया था कि समोसे का स्वाद और जल्दी जल्दी बदलता है। मैं माफ़ी चाहता हूँ कथा कलम के लिए। मेरे ख्याल में बात वहाँ से शुरू करें कि जहाँ बाणी नहीं बदलती है। ये लफ्ज़ों के जादूगर बैठे हैं बगल में मेरे, तो इन्होंने जो हिंदी बोली है जी, उसका अगर 1000वां हिस्सा मलयालम का मैं बोलने की स्थिति में होता तो मैं कहता बोली बदलती है। ये जहाँ से शुरू हुए हैं वहाँ से हिंदुस्तानी हिंदी कहिए कुछ कहिए वो केरल तक पहुँची हुई है। जी। तो समोसे वमोसे का जिक्र छोड़ें, जी। इन्होंने एक दूसरी बड़ी प्यारी बात कही थी। मैं आपके सवालों को दरकिनार करूँ तो आप मुझे माफ़ करें। जी। मेरी बदतमीज़ी वो मास्टरों की बुरी आदत होती है, माइक हाथ पे आए तो चुप नहीं होते। इन्होंने एक और बड़ी प्यारी बात कही थी जो सोचने लायक है। जी। देखिए, मैं उद्यमिता से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए इस किताब की सबसे खूबसूरत बात यह है कि बड़ा पुराना हिंदी फिल्मी गाना था, मेरे महबूब में क्या नहीं क्या नहीं। मुझे लगता है इस किताब की खासियत ये है कि इसको जब आप उठाएं तो आप इसको इस नज़रिए से पढ़ सकते हैं कि वो नौजवान जो सपने देखता है, वो नौजवान जो असफल होता है, एक दरवाज़ा बंद होता है 2 दरवाजे खुलते हैं। मगर शशि ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। वो कई बातें व्यंजना में कहते हैं, उन्होंने परिवार का जिक्र किया। मैं भी यहाँ एक तरह से परिवार के रिश्ते से आया हूँ। इस परिवार के साथ 4 पीढ़ियों का मेरा रिश्ता है। अपूर्व के पिताश्री ने मुझको पढ़ाया, मेरे भाई को पढ़ाया। उनके पिताश्री ने मेरी माँ को शांति निकेतन में 1936 से 41 के बीच पढ़ाया। मेरे नाना जब दीवान ओरछा में थे तो तब बनारसी दास जी उनके साथ वहाँ रहे थे। तो एक तरह से वो मुहावरा गलत है, मेरी घर वापसी आज हो रही है। और इन्होंने एक और जो बड़ी प्यारी बात कही थी, इन्होंने परिवार का जिक्र किया और बार बार परिवार का जिक्र किया। मुझे लगता है कि परिवार अच्छी चीज़ है, परिवारवाद बुरी चीज़ है। और वो बहुत अच्छी बात। नहीं, अभी जब हम बैठ रहे थे तो उसके बाद इन्होंने छेड़ा मुझे। उन्होंने कहा कि कुछ तुम्हारे हाल के जो कॉलम हैं, वो एक राजनीतिक कॉलम भी मैं लिखता हूँ, खाने के अलावा वो कम लोग पढ़ते हैं मगर ये पढ़ते हैं। तो इन्होंने कहा कि कुछ बड़े तीखे टिप्पणियाँ तुमने हम लोगों के परिवार पे यानी कांग्रेस परिवार पे की हैं। मैं उसमें भी बाहर वाला नहीं, घर वापसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। मगर मुझे लगता है कि इस किताब में जो परिवार की परिभाषा है वो इन्होंने कहा, जो आपके सवाल ख़त्म होने के बाद जो भाई साहब ने टिप्पणी की, जो इन्होंने कहा कि एक ऋण होता है, एक पितृ ऋण होता है, एक गुरु ऋण होता है। मैं दोनों रिश्तों से आज यहाँ हूँ। अंशतः गुरु ऋण से मुक्त होने के लिए जीवन पर्यंत कोई मुक्त नहीं होता, पितरों के ऋण से कोई जीवन भर मुक्त नहीं हो सकता है। मगर मुझे लगता है परिवार सिर्फ जन्मजात नहीं होता, परिवार सिर्फ राजनीतिक नहीं होता, परिवार एक परिवारवाद डायनेस्टी नहीं होती। और मुझे लगता है परिवारवाद के लिए सिर्फ बेचारी कांग्रेस बदनाम क्यों हो। गिरिलाल जैन ने जब बात की थी डायनेस्टिक डेमोक्रेसी की, तब से अब तक बहुत पानी बह चुका है। और हर परिवार के मतलब अब नाम क्या लें, जो सत्तारूढ़ दल है उसमें परिवारवाद की कोई कमी कहीं रत्ती भर भी दिख रही हो किसी को तो वो जाने। वो क्रिकेट से लेके वकालत के मैदान तक परिवारवाद परिवारवादी है। मगर मुझे लगता है कि परिवार एक वो होता है जो जन्म से नहीं, शादी से नहीं, मन के माने रिश्तों से होता है। जी, और मुझे लगता है कि वो रिश्ता सबसे अहम होता है।
और इस किताब में मुझे जो सबसे आकर्षक बात लगी कि जब ये जहाँ जाते हैं तो वो फिर दूसरा फिल्मी गाना है। बुरी बुरी आदत है हिंदी फिल्मी गाने आजकल पुराने गाने कम याद आते हैं। शैलेंद्र की शताब्दी का वर्ष है, राज कपूर की शताब्दी 2 दिन पहले शुरू हुई है जी। मगर जो एक था कि जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। मुझे लगता है इनकी खासियत ये है कि जो इनको प्यार से मिला ये उसके ही नहीं हुए, उसको अपना बना लिया इन्होंने। जी। तो जो साख और ये सभागार आज गवाह है इस बात का कि जी, और मुझे लगता है कि जो अंतिम बात मैं संक्षेप में कहना चाहता जी, हूँ जी। और लोग प्रतीक्षारत हैं और मैंने तो आपके सवालों को वो इधर उधर कर दिया है। मुझे लगता है कि इनकी खासियत ये है कि एक व्यक्ति होता है जिसको लेकर जिसके इर्द गिर्द परिवार घूमता है। अब ईशा ने जो कहा कि मामा जी और मैंने कहानियाँ सुनी, ये किस्से कहानियाँ हर परिवार में बुजुर्ग बच्चों को सुनाते हैं जी। मगर जो धारा बहती है वो ऊपर से नीचे की तरफ ही बहती है। वो मुझे लगता है कि ये इनका बड़ा गुण है कि इन्होंने न केवल अपने परिवार को साथ रखा है, मुझे दूसरा परिवार भी याद आ रहा है। माहेश्वरी जी यहाँ बैठे हुए हैं और वो मेरे प्रकाशक भी हैं, तो एक लेखक प्रकाशक का परिवार भी होता है जी। ये संयोग है कि ये लोक भारती ने इसे छापा है और राजकमल परिवार का लेखक होने का जो गर्व, जो सुख मुझे महसूस होता है वो इनके परिवार के साथ जुड़ने के सुख से समकक्ष है। वाह, वाह। तो मुझे लगता है कि जो आदमी जिसमें ये गुण होता है कि वो अपने रिश्ते बनाता है तो रिश्तों की जो गर्मी होती है वो इस ठंडे मौसम में भी महसूस की जा सकती है इस किताब में। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छी बात की सर, और मुझे इस बात का ज़रा सा भी मलाल नहीं है कि मेरा सवाल इधर उधर हुआ। इनफैक्ट मैं जब स्कूल में था तो मेरे एक मित्र के नंबर बहुत आते थे और मेरे कम आते थे, पढ़ते हम लोग लगभग बराबर ही थे। तो मैंने एक दिन उससे पूछा कि तुम्हारी सफलता का क्या राज है, तो उसने कहा देखो मैं 5 सवाल पढ़ के जाता हूँ और 5 लिख के आ जाता हूँ, क्या पूछा गया है उससे मुझे मतलब नहीं होता है। तो आज मुझे कुछ ऐसा ही महसूस हुआ कि ये ठीक है। सर आपके लिए मेरे पास 2-3 प्रश्न और हैं, लेकिन मैं आगे चल के पूछूं। जी 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 जी। हम हारे दिन सुनाएंगे, सुनिए कि ना सुनिए। जी, तो एक मैं आपके पास वापस आता हूं सर। और सुनीता जी, आपसे उस दिन फ़ोन पे भी बात हुई, बहुत अच्छा लगा। एक तो आप थोड़ा सा हमें बताइएगा कि ये लोगों के लिए भी कि सिल्क रूट पे आपने काम किया है, वो क्या है सिल्क रूट, और जो आपने अतुल जी की पुस्तक पढ़ी होगी तो उसमें आपको क्या लगा कि एक तो देखिए उसके 2-3 पहलू हैं इस पुस्तक के, जितना मैंने समझा। एक तो उसका बिजनेस पहलू है, वो तो आप मान ही सकते हैं कि वो बहुत एविडेंट है, शायद बैकग्राउंड वहीं से शुरू होता है कि एक एक्सपोर्टर की कहानी है। लेकिन साथ साथ एक ट्रेवलॉग तो है ही है और बहुत रोचक ट्रेवलॉग है। इनफैक्ट जो भी यहाँ पे युवा लोग बैठे हैं या जो लोग भी पुस्तकों पे जिनकी रुचि खत्म हो गई है, यदि आप अपनी रुचि वापस लाना चाहते हैं पुस्तकों में, या आप चाहते हैं कि आपके परिवार के लोगों की रुचि पुस्तक में वापस आए, तो आप शुरुआत कर सकते हैं सियासत से स्याही तक से, सियासत मेरी स्याही से, इस पुस्तक से आप शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इसके पढ़ने के बाद आपकी पुस्तकों में रुचि बढ़ जाएगी, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। तो आपने उसमें बात की थी कि ये तो 2 चीज़ें हो गई, ट्रैवलॉग है वो, और एक बिजनेस के बारे में काफ़ी कुछ उसमें कहा गया है। पर वो पॉइंट है कि उन्होंने मॉन्यूमेंटल हिस्ट्री भी अच्छे से एक्सप्लेन की है, यानी जिन जगहों पर गए वहाँ पे लोगों के अलावा, बिजनेस के अलावा, उन्होंने उन जगहों को भी खूब देखा, खूब समझा, खूब ऑब्जर्व किया और उनके बारे में खूब अच्छे अच्छे डिटेल्स लिखे हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने नोटिस की हो इस पुस्तक में? जी हाँ। हेलो। सबसे पहली बात जो मैंने किताब में नोट किया है, सबसे ज़रूरी चीज़, कि वो केवल मर्चेंट और ट्रेडर बन के नहीं गए। वो ज़रूर सामान लेके गए और ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वो एक हेरिटेज लवर की तरह भी गए। जी। तो दिन में तो वो अपने ऑर्डर्स लेने के लिए दरवाजे खटखटा रहे थे, लेकिन शाम होते ही वो निकल जा रहे थे हेरिटेज साइट्स पर। इनफैक्ट एक जगह उन्होंने मेंशन किया है जहाँ पे वो इजिप्ट में गए हैं, तो कमरे में पहुँचते ही उन्होंने अपना सामान रखा और आराम करने के बजाय उन्होंने खिड़की खोली और सामने देखा पिरामिड। जी जी जी। और उनके मन में ये चाह आ गई कि मैं अभी लपक के उस जगह पे पहुँच जाऊँ। करेक्ट।
है ना? तो ही हैज़ नॉट गॉन देयर ओनली एज अ ट्रेडर और एज अ मर्चेंट, बट ऑल्सो एज अ हेरिटेज लवर जी और एक्सप्लोरर, कि कैसे मैं एक्सप्लोर करूं, यहाँ की हर चीज़ कैसे एक्सप्लोर करूं। और जहाँ तक आपने सिल्क रोड की बात करी है, पहली बात तो ये है, संक्षेप में मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोग ने नाम तो उसको सिल्क रोड दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे खाली सिल्क जा रहा था। जी। वो एक बहुत छोटा सा फ्रैक्शन ऑफ द कमोडिटीज दैट वर ट्रैवलिंग ऑन दोज रूट्स वाज सिल्क, बट उसके अलावा बहुत चीज़ें जा रही थी। मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें जो उस पर जा रही थी वो स्पाइसेस थे और तरीके का इंडियन मसलिन था, और इंडिया के बहुत सारे उत्पाद वहाँ से जा रहे थे। तो वो जो रूट्स हैं वो एक्चुअली दे वर द ट्रेड रूट्स, एंशिएंट ट्रेड रूट्स थे वो, जिन पर आप अतुल जी ट्रैवल किए हैं। और मैं भी ट्रैवल करी हूँ, जैसे आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। बस फ़र्क दोनों के ट्रैवल में केवल ये अलग-अलग है, दिशाओं का है। उनके ट्रैवल में फ़र्क ये है कि वो वेस्टर्न रूट्स उन्होंने पकड़ लिया। जी। बेशक वो फ्लाइट लेके गए, लेकिन उन्होंने वेस्टर्न रूट्स पकड़ा, जो कि हमारे देश से हो के। अच्छा, दूसरी बात ये कि बहुत गैर तलब बात ये है कि जहाँ के ये रहने वाले हैं, फिरोज़ाबाद, जी। वहाँ के पास आगरा और मथुरा है। वहाँ से नेशनल हाईवे जाता था जयपुर जैसलमेर होते हुए क्वेटा, और क्वेटा से वो बोलन पास और गोमल पास होते हुए सीधे गजनी कांधार में जाता था। तो एक्चुअली इनका रूट जो है, इट इज़ द वेस्टर्न रूट विच हैज़ टेकन हिम ओवर पर्शिया, सदर्न कैस्पियन, और होते हुए वो मेडिटेरेनियन पे पहुंच गए। तो मेरा रूट में ये फ़र्क था कि मैंने ईस्टर्न रूट ले लिया, अफ़गानिस्तान से वो पामीर्स और सेंट्रल एशिया और जिंजियांग वो रूट ले लिया। फ़र्क केवल ये था। अदरवाइज़ हमारा भी हेरिटेज का वो था कि मैं भी हेरिटेज वहाँ का देखूं, स्पेशली द बुद्धिस्ट हेरिटेज, और इन्होंने तो सारा ही कवर कर लिया। जी। और सारे मॉन्यूमेंट्स, कोई ऐसा मॉन्यूमेंट नहीं है जो इनसे जो छूटा उन हो। देशों में छूटा हो। जी। अच्छा, हेरिटेज में इन्होंने जो उनकी हेरिटेज रिवर्स हैं वो भी इन्होंने उसका वर्णन किया, बहुत अच्छे से वर्णन किया। जी। जो नील नदी है उसका इतना अच्छा इन्होंने नौका विहार, और जो वहाँ पे बाजार लगते थे और क्या बगीचे थे वहाँ पर। मुझे तो लगता है कि बतूता ने जो नील नदी का वर्णन किया है उससे कम नहीं है इनका वाह वाह वर्णन। वाह वाह वाह, ये बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है जी। सर। तो नील नदी का वर्णन, सीन नदी का वर्णन, राइन नदी का वर्णन, हर जगह इन्होंने नौका विहार किया। और उसके साथ इन्होंने ये तुलना करी कि भारतवर्ष में कैसे हम लोग को जोड़ना चाहिए रिवर टूरिज्म, कैसे हमें ट्रेड के साथ भी टूरिज्म जोड़ना चाहिए। एक जगह इन्होंने सवाल भी पूछा है कि ऐसा क्यों नहीं होता कि जो लोग ताजमहल देखने आते हैं, आगरा आते हैं, वो फिरोजाबाद क्यों नहीं जाते हैं? जी। पास में ही तो है फिरोजाबाद। जी जी, एकदम बगल में। आई थिंक जी। इट इज ओनली 20 और 23 किलोमीटर्स फ्रॉम आगरा। तो जी। वो क्यों नहीं जाते हैं वहाँ पे? वो मथुरा क्यों नहीं जाते हैं? तो ये गौरतलब चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि इनके दिल में, इनके अंतर मन में ये भारत ही देख रहे थे वहाँ भी। ये बहुत भारत अच्छी बात कही आपने। जी। जी जी। देख तो और हो रहे हाँ, थे, इस पे तालियां बजनी लेकिन चाहिए। इनके मन में भारत था। भारत से हमेशा इनकी तुलना रह रही थी। कोई मीनार देख रहे थे तो वो भारतवर्ष में इस मीनार का काउंटर पार्ट क्या होगा, हैं? कुतुब मीनार है, या अफगानिस्तान में हेरात में जो मीनार है उसका वर्णन कर रहे थे। तो हर जगह अगर नौका विहार कर रहे थे तो इन्होंने यमुना पे नौका विहार की बात करी, गंगा नदी पे नौका विहार की बात करी। जी। अच्छा, यहाँ तक कि इन्होंने ये चीज़ भी खोज ली कि पर्शियन गल्फ में एक जगह ये गए, पर्शियन गल्फ में वहाँ विश्राम घाट खोज लिया इन्होंने। सबसे ताजुब की बात है। और विश्राम घाट पे कैसे आरती हो रही थी, कैसे पूजा हो रही थी, प्रसाद चढ़ाया जा रहा था, और यमुना मैया की जय बोली जा रही थी, यहाँ तक इन्होंने खोज लिया। तो इस तरीके से कई जगह इन्होंने ये किया। जी जी। तो अच्छा, चतुर्वेदी परिवार कहाँ रह रहा था वो भी इन्होंने खोजा, और उसका काफ़ी वर्णन दिया इन्होंने। जी। कैसे कि परिवार जो डायस्पोरा है यहाँ से, जो वहाँ पे बसे हैं लोग,
वो अपनी संस्कृति को भूल नहीं पा रहे हैं और ना भूलना चाहिए उन्हें। तो ये सब चीज़ें बहुत ही गौरतलब चीज़ बहुत आपने माइन्यूटली ऑब्जर्व किया और एक एक बात आपने जो बोली। जी जी, थैंक यू। जी जी बिल्कुल। माफ़ कीजिए, मुझे आपकी इजाज़त से मुझे जाना पड़ेगा, मुझे एक और अपॉइंटमेंट है। मुझे भी वैसे भी जो कुछ कहना था मैंने कह चुका हूँ, लेकिन एक चीज़ बताऊंगा पुष्पेश पंत जी को कि राजनीति में हमें परिवार का महत्व अच्छी तरह जानते हैं। सर, फिरोजाबाद की स्पेशल। अच्छा, फिरोजाबाद जी। अभी अभी रुको प्लीज। बिल्कुल। सी यू, नमस्कार। सॉरी फॉर मिसिंग व्हाट यू हैव टू से। माफ कीजिए। और थोड़ा देर से आए हैं लेकिन दुरुस्त आएंगे, आप चिंता ना करिए। हाँ, पीपल कम बैक। ओके। इन द मीन टाइम, जब तक बाकी लोग वापस आने, अगर आप लोग में से कोई प्रश्न अतुल जी से पूछना चाहें तो। अच्छा, नहीं ठीक है सर, मैं देख लेता हूँ, वेट कर लेता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है। तो सर, आप हिस्ट्री के प्रोफेसर रहे हैं और आपने हिस्ट्री पे बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। इस पुस्तक में जो अतुल जी की पुस्तक है, इसमें 13 देशों की तो बात हो ही गई है, आगे और भी होगी ऐसी उम्मीद है। इन देशों का एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी उभर के आता है, और जैसे हम लोगों ने अभी बात की और सुनीता जी ने भी बताया कि मॉन्यूमेंट्स की भी बात हो रही है, रिवर्स की भी बात, यानी ज्योग्राफी की भी बात हो रही है, साथ साथ हिस्ट्री भी कवर हो रही है। तो आपने वर्ल्ड हिस्ट्री भी बहुत पढ़ी है और पढ़ाई है, तो क्या आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से इस किताब को कैसे देखते हैं? हेलो, मैं अध्यापक रहा हूँ, इसीलिए मैं डॉक पे जाके वहाँ खड़े होके बोलना पसंद करूँगा। आपका स्वागत है। आपका जवाब दूंगा। नॉट यू। Politicians can be armchair, but not a teacher, and he should not be. आदरणीय पुष्पेश पंत जी, आदरणीय सुनीता जी, डॉक्टर साहब अपूर्व जी, हमारी छोटी बहन मिनी, हमारे प्रकाशक आमोद महेश्वरी जी, और जिनको मैं बचपन से जानता हूँ, ऐसे चंद्रशेखर वर्मा जी, जिनके बाबा साहब को खूब हम लोगों ने पढ़ा है, देखा है, और मुझे तो सौभाग्य मिला था भगवती बाबू को कॉफ़ी हाउस ले जाने का इलाहाबाद। इनके चाचा विजय वर्मा जी कह देते थे, हिरम तुम खाली हो, तुम लेते जाना, तो वो भी सौभाग्य मिला है। मैं सबसे पहले भाई अतुल चतुर्वेदी को बधाई दूंगा इतनी बेहतरीन पुस्तक लिखने के लिए। और जो बात शुरू करना चाह रहा हूँ, तो बार बार याद आ रहे हैं पुष्पेश पंत जी की भूमिका, जिसमें पहला शेर लिखा, वो पहला शेर इत्तेफाक से राहुल सांकृत्यायन ने भी कोट किया है, मेरी जीवन यात्रा पहले उसमें, और वो उनके प्रकाशक भी बैठे हैं इत्तेफाक से। तो मैं दूसरा शेर पढ़ता हूँ गाफिल साहब का। अज़ल के नाम से गाफिल तेरा दिल क्यों धड़कता है, मुसाफिर रोज़ आते हैं ये रास्ता खूब चलता है। ये फैक्ट है कि मानव का इतिहास जो बना है वो यात्राओं से बना है। वी हैव इवॉल्व्ड बिकॉज ऑफ शेयर्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस। और ईशा ने बहुत अच्छी बात कही थी कि कैसे इसको पढ़ना चाहिए, बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन उसने दिया। और मुझे बार बार याद आता है कि आखिर नोमैड्स थे, यायावर थे, बार्टर सिस्टम होता था। वो चूँकि पुष्पेश पंत जी बैठे हैं तो मुझे हिम्मत मिल रही, इसलिए मैं ये सब बातें बोल पा रहा हूँ। तो बार्टर सिस्टम से ही एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ भी हैं, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ अकेले नहीं है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ भी हैं।
और जैसे ही एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ बात करता हूँ, मैं 1 मिनट को ज़रा सा गुस्ताखी माफ़ कर दीजिए। मेरे 2 सहपाठी यहाँ बैठे, मैं उनको याद कर लूँ। एक मेरे स्कूल के साथी बैठे हैं, माननीय प्रदीप शुक्ला जी, और एक मेरी यूनिवर्सिटी की साथी बैठी हैं, रंजना ढोभाल जोशी जी। तो इन दोनों को भी याद कर लूँ मैं, क्योंकि मेरा लिए बड़ा भारी इत्तेफाक है कि एक अवसर है कि बाकी लोगों से भी मुलाकात हो रही है। तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ का जहाँ तक सवाल है, जब वो आनंद कुमार स्वामी ने एक किताब लिखी द डांस ऑफ शिवा, और आज तक मशहूर है, उसके प्रीफेस में उसने बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है। उसमें लिखा है, वी हैव डिराइव्ड ऑल आवर आइडियाज़ एंड गॉड्स फ्रॉम इंडिया। ये उसने लिखा है। और जैसे ही मैं याद करता हूँ, तो मुझे जब आपने ग्रीक इतना लिखा है, तो मुझे एडवर्ड पोकॉक की किताब याद आई। जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया ग्रीक सिविलाइजेशन का आपका, उसने तो लिखा है इंडिया इन ग्रीस, नॉट इंडियंस इन ग्रीस, इंडिया इन ग्रीस। तो ये एटमोलॉजिकली वो साबित भी कर देता है कि सारे जो नाम हैं वो सब संस्कृत डेरिवेटिव हैं, दे आर नॉट ग्रीक डेरिवेटिव्स। तो ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात है इस किताब में। इसीलिए शेयर्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस की जब भी बात आएगी, तो बार बार ये पुस्तक महत्वपूर्ण हो जाएगी इस मोड़ पे। जैसे राहुल सांकृत्यायन की मेरी जीवन यात्रा 4 खंड में हमारे अमोद माहेश्वरी जी छापे बैठे हुए हैं। तो इंडिया का ट्रेड जो किसी दौर में काफ़ी था, जिसकी तरफ एक हल्का सा इशारा सुनीता जी ने दिया, वो दक्षिणापथ उत्तरापथ का। और मौर्यन टाइम्स में तो हमें पता चलता है, बाकायदा जो ग्रीक रोमन हिस्टोरियंस हैं वो बता रहे हैं कैसे ये पूरा रूट है। तो इस रूट पे लगातार लोग चल रहे हैं, ट्रेडर्स चल रहे हैं, एक्सपोर्टर्स चल रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो रहा है। तो इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अल्टीमेटली आफ्टर दैट चैप्टर ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, इट इज़ इन फैक्ट रिवाइवल ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स। और बहुत बड़ा काम अतुल जी ने किया कि इस इलाके को उठा करके वर्ल्ड मैप में उन्होंने फिर से खड़ा करने की कोशिश की है। लेकिन ये बात तो मैं ज़रूर कहूँगा कि वो जिस तरह से सबको एक तरह से अपना ऑब्लिगेशन व्यक्त कर रहे हैं कि इन्होंने मदद की, उन्होंने मदद की, उसमें वो आर्टिसंस को नहीं भूले हैं, कॉपर वर्कर्स को नहीं भूले हैं, ग्लास वर्कर्स को नहीं भूले हैं। तो वो लेवल तक पहुंचना और सबके साथ जुड़ना, जो परिवार की बात पुष्पेश भाई बराबर कह रहे थे, ये बहुत व्यापक परिवार, मानव परिवार की बात उन्होंने की है जैसे ही वो इसकी बात करते हैं। और जैसे ही वो बात करते हैं जब इजिप्ट की, तो कैसे वो ये बताने लगते हैं कि इंडियन मसलिन से ही मम्मीज़ को वो रैप कर रहे हैं, और वहाँ से बात ले आते हैं क्लियोपेट्रा पे, कैसे नेपोलियन उसको महारानी बना रहा है, और वहीं तक नहीं रुक रहे हैं। 1977 सिनाई स्नैचिंग एंड ट्रीटी ऑफ कैंप डेविड। तो ये पूरा एक दौर इतिहास का कैसे लेना है, कैसे जिस देश में जाओ उसका इतिहास, जिस शहर में जाओ उसका इतिहास, उसके कोऑर्डिनेट्स, ये तमाम चीज़ें जो बताते हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया जब वो लंदन टावर ब्रिज की वो बातें की हूँ उन्होंने, और मेरे ख्याल से 2-1 मिनट और ले लूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ आ गया था। तो वो मतलब सोचिए, उनको वहाँ याद आ रहा है, इफ़ द क्रोज डाई द किंगडम विल फॉल, और वो क्रोज को क्रिपल कर देते हैं, और ताकि वो और लगातार फीड करते रहें, सो दे डोंट डाई। और सीधे उसे जोड़ते हैं पितृपक्ष से। जो हमारे यहाँ पितृपक्ष होता है, कौओं को खिलाया जाता है, कौए ढूंढे जाते हैं उस दौर में, उसकी भी चर्चा इस किताब में आपको मिल जाएगी। जो सुनीता जी कह रही थी, हर जगह वो अंतर्मन में भारत है, और भारत देख रहे हैं, मीनार देख रहे हैं तो शेरमंडल याद आएगा कि जहाँ से हुमायूं गिरा। एक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात जो म्यूज़ियम्स देखते हुए उन्होंने की है, वो ये की है कि कैसे हमने अपनी माइथोलॉजी को हिस्टोरिकल माइथोलॉजी में नहीं बदला है। और ये काम बहुत ज़रूरी है, जो मेरे ख्याल से होना चाहिए। और अतुल जी की इस पुस्तक के बहाने मैं कह सकता हूँ ये काम बहुत तेज़ी से हो रहा है,
और लगातार हो रहा है। और इसी के साथ मैं एक बार पुनः आपको धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा, लेकिन एक चीज़ कह दूंगा कि ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वेज होते हैं, एक्सकवेशंस होते हैं, एनालिसिस होती, इट टेक्स टाइम। तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, नतीजे बहुत अच्छे आएंगे और इतिहास सही रूप में ही अल्टीमेटली आएगा। इतिहास अपने आप में बड़ा क्रूएल होता है, वो आपको माफ़ नहीं करेगा अगर आपने उसके साथ डिस्टॉर्शन किया। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद और अतुल जी को बताइए बहुत बहुत। एक प्रोफेसर की जितनी भी क्वालिटीज़ थी वो हमें यहाँ देखने मिली। खड़े होके तो बोला ही सर ने, लेकिन बहुत ही डिटेल में रोचक ढंग से बताया। एक क्वालिटी मिस हो गई कि प्रोफेसर कम से कम 45 मिनट बोलता है। आपने कहा 45 मिनट में पूरा खत्म करना है। नहीं, अभी भी मौका है, दीजिए तो आप पढ़ा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, रोचक बातें। और हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं श्री अनुपम त्रिवेदी जी। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप एसोसिएट रहे हैं सर के साथ, तो कुछ इस पुस्तक के बारे में, कुछ अतुल जी के बारे में आप बोलें। अनुपम त्रिवेदी जी, एक बाइंग एजेंसी का बड़ा भारी रोल होता है एक्सपोर्ट्स में, क्योंकि हिंदुस्तान के या किसी देश के व्यापारी को दूसरे देश के व्यापारी के बीच में जो बाइंग एजेंट होते हैं वो मिलवाते भी हैं, वो गारंटी भी एक तरह की होते हैं कि आप ऑर्डर दोगे तो टाइम से सप्लाई होगी और ऑर्डर भेजोगे तो पेमेंट भी आएगा। और अनुपम त्रिवेदी जी ने मेरी बहुत मदद की है, कई स्थानों पे किताब में जिक्र है। अनुपम जी, धन्यवाद अतुल जी। पहले तो बहुत बहुत बधाई। कार्यक्रम की शुरुआत में ही हॉल खचाखच भरा था, बैठने की जगह नहीं मिल रही थी, तो यही सबसे बड़ी सफलता की निशानी है। आपकी पुस्तक भी बहुत सफल हो, आपको शुभकामनाएं। अतुल जी ने कहा मैंने बहुत मदद की है उनको। दरअसल स्थिति कुछ और है। इस पुस्तक को मैंने आज विमोचन हुआ, पर उससे पहले ही कई बार पढ़ लिया है। इनकी FB पोस्ट में, और जैसे ईशा बेटी ने शुरू में कहा था, इन्होंने अपनी कहानियाँ सुनाते थे, मैं इनकी यात्रा का सहभागी रहा हूँ। वो कहानियाँ मैंने भी सुनी हैं और देखी भी हैं। इस पुस्तक में आज इसको पढ़ेंगे आप, इसमें दो ज़िंदगी के बहुत बड़े फ़लसफ़े हैं, दो लेसन्स हैं। आज मेरे यहाँ युवा साथी बैठे हैं, इसलिए मैं मंच की इजाज़त चाहूँगा 2 मिनट मुझे दें, जिससे कि मैं उन फ़लसफ़ों को जो मुझे समझ में आए हैं आपके साथ साझा कर सकूँ। पहला जो है, एक दृष्टांत इन्होंने दिया है। ये फ्रैंकफर्ट गए और एक उस यात्रा में इनको 2 दिन 3 दिन पहले कुछ भी नहीं मिला। ये जगह जगह जो बता रहे हैं 60-70 किलो का बैग लेकर घूमते थे, दरवाजे दरवाजे पर नॉक कर रहे थे, पर कहीं सफलता नहीं मिल रही थी। ये बहुत निराश थे। इन्होंने अपने परिवार को फ़ोन करके कहा, इनकी माँ ने कहा कोई बात नहीं, तुम वापस आ जाओ। फिर ये अगले दिन गए तो इनको सुबह वहाँ पे जब घुसे हॉल में तो गणेश जी की प्रतिमा दिखाई दी। इनको लगा आज मेरी किस्मत शायद अच्छी हो। थोड़ी देर बाद ये आगे बढ़े और चांस की बात है, इनसे मेरी मुलाकात हो गई। मैं अपने एक कस्टमर के साथ, एक फ्रेंड के साथ बैठा था, एक जर्मन थे लोथार हॉयबल, तो उनके साथ बैठा था। ये आए मेरे पास, तो मैंने इनसे उनको मिलाया और उस मिलाने के बाद इनका परिचय कराया, तो उन्होंने इनको बैठा लिया और उस दिन शाम से ही इनको पहले डिनर पे बुलाया और ऑर्डर लिखाना शुरू कर दिया। 24 घंटे नहीं बीते, इनको $1 लाख से ज़्यादा के ऑर्डर मिल गए। और उस ज़माने के $1 लाख सोचिए $1 मिलियन से ज़्यादा होंगे। पर क्या मैंने मदद करी थी उसमें? क्या मैं उसके लिए जिम्मेदार था? नहीं, मैं केवल माध्यम था। ये इनका प्रारब्ध और इनका पुरुषार्थ था जो उन्हें वहाँ तक लेकर आया। और यही बात, यही फ़लसफ़ा मैं ज़िंदगी का आपको बताना चाहता हूँ। मेरे युवा साथी जो यहाँ बैठे हैं, लोथार को ज़रूरत थी, बायर्स को ज़रूरत थी, पर वो ज़रूरत तभी हो सकती थी जब ये उसको पूरा कर पाते। ये उसके लिए तैयार थे, इनके पास सैंपल्स थे, इनके पास मोटे मोटे कैटलॉग्स थे। सोचिए उस ज़माने में, आज भी अगर आप एक बैग एक्स्ट्रा लेके जाते हो तो एयरलाइन वाले आपको रोक लेते हैं। तो कस्टम में कितनी दिक्कत हुई होगी उसको, कहीं उसका बैग का पहिया टूट गया, कहीं कुछ हो रहा है, ऐसे में लाद के ले जाना। वो जिजीविषा चाहिए, वो इच्छा शक्ति चाहिए, वो पुरुषार्थ चाहिए। तो इसलिए कहते हैं ना, वो उस दिन वो किस्मत जिसको हम कहते हैं ना, किस्मत है क्या, जिस लक की, जिसकी किस्मत की एक परिभाषा में जिसमें मैं विश्वास करता हूँ, वो है लक इज़ व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। इनको अपॉर्चुनिटी मिली बट ही वॉज प्रिपेयर्ड, तो वो किस्मत में बदल गई, वो लक बदल गया।
तो आप सब साथियों से भी मेरा अनुरोध है, जो सोचते हैं कि अरे सब मेहनत तो सब करते हैं, किस्मत से सब मिलता है, मेहनत करते रहिए, ज़िंदगी बहुत अवसर देती है। कोई ना कोई अवसर ऐसा आएगा जब आपकी मेहनत मिलेगी तो वो आपकी किस्मत में बदल जाएगी। और वो कैसे उस दिन पहुँचे मेरे पास, ये भी है ना, वो कहते ना कि नदियों को कौन बताता है समंदर का रास्ता, जिनको जुनून होता है मंजिल का वो रास्ते खुद तलाश लेते हैं ना। तो ये इस तरह के लोग पहुंचते हैं, ढूंढ लेते हैं। दूसरा फ़लसफ़ा जो मुझे दिखाई दिया उसमें यात्रा का, जैसे ईशा ने बोला था या किसी ने बोला था कि बार बार जगह यात्रा करना, इतने देशों की यात्रा करना। देखिए, यात्रा एक मेरा अपना अनुभव है, आप सबका भी होगा, हर यात्रा आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, कुछ ना कुछ देकर जाती है, चाहे वो बड़ी यात्रा हो या छोटी यात्रा हो, कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। यात्रा करना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत आवश्यक होता है। हम में से बहुत साथी यहाँ बैठे हैं, सोचते हैं अरे घूम लेंगे, क्या है, रिटायरमेंट में घूमेंगे, अभी तो काम कर लें। लेकिन आज यात्रा साहित्य की बात हो रही है, जिस पे इन्होंने पुस्तक लिखी है, तो ऐसे में मैं याद करना चाहूँगा महापंडित राहुल सांकृत्यायन को, जिनका सारा का सारा साहित्य यात्रा और उसके अनुभवों पर ही था। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो ये समय है जब आपको मौका मिले। इन्होंने उस समय जब वीज़ा मिलना मुश्किल होता था, डॉलर नहीं होते थे, सरकार आपको डॉलर ऐसे देती थी जैसे आप भिखारी को चिल्लर देते हैं, ऐसे में जाना, उन खर्चे के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, आप मेहनत करके जा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, तो वो प्रयास करना, वो यात्रा बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि हम सबका मुकद्दर कहीं ना कहीं है। अब किस देश में है, कहाँ पर है, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा, वो यात्रा करनी होगी और उस मुकद्दर को हासिल करना होगा। अंत में मैं अपने मित्र से अपनी एक इच्छा व्यक्त करना चाहता हूँ। इनकी एक यात्रा के बारे में सबने देखा है, सबने सुना है, सब जान रहे हैं, इस पुस्तक में भी लिखा है। एक यात्रा इनकी और चल रही है, वो भी आप सब जानते हैं, राजनीतिक यात्रा। मैं हालांकि इनसे दूसरी पार्टी में हूँ, लेकिन मेरी बहुत दिली इच्छा है कि अपनी राजनीतिक यात्रा में भी आगे बढ़ें। और जैसे आज हम सियाहत मेरी स्याही से का विमोचन कर रहे हैं, कुछ वर्षों बाद हम सियासत मेरी स्याही से का भी विमोचन करें। सुंदर आपका मनोभाव और शब्द, और ईश्वर करे कि जो आपने अपनी ख्वाहिश व्यक्त की है, हम लोग फिर एक बार इस मंच पर इकट्ठा हों और अगली पुस्तक के लिए। हाँ जी सर, मैं आ जाता हूँ उस पर। तो जो बात अभी अनुपम जी कह रहे थे कि एक कोट है सेंट ऑगस्टीन का कि द वर्ल्ड इज़ अ बुक एंड यू हैव नॉट ट्रैवल्ड इफ़ यू हैव ओनली रेड द प्रेफेस। तो ये जो आज इस किताब के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, उससे यही खुल के आता है कि जितना आप ट्रैवल करेंगे, जैसे अनुपम जी ने कहा भी कि आप सीखते हैं हर बार जब आप ट्रैवल करते हैं, कोई भी आपका मकसद हो, उद्देश्य हो, जब आप यात्रा करेंगे तो आप सीखेंगे। और उसी यात्रा को आपके सामने रखा है इस पुस्तक में, जिसका नाम है सियाहत मेरी स्याही से। अब मैं इस फोरम को ओपन कर रहा हूँ। हम चाहेंगे कि आप सब लोग यहाँ पर आए हैं और आपके मन में भी कुछ सवाल होंगे। पैनल आपके सामने है, आप जिससे भी चाहें सवाल पूछ सकते हैं। जी सर, एक माइक यदि कोई उन तक पहुँचा दें। तो इस टाइटल के पीछे आपकी क्या सोच थी, क्या विचार था, क्या आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, इतनी बड़ी गैदरिंग में भी झूठ तो मुझ पर बोला नहीं जाएगा। किताब लिख रहा था तब तक तो मुझे सियाहत का मतलब खुद नहीं पता था, लेकिन जब उसका टाइटल खोजा जा रहा था तो एक तो विश्वराज सिंह है और एक हमारे फिरोज़ाबाद में अनवर कमाल साहब हैं। वो टाइटल में उन लोगों ने सुझाया, थोड़ा फेरबदल मैंने किया, और आज सियाहत का अर्थ मुझे भी मालूम है और आप सबको भी। वाह। जी, और कोई प्रश्न? यदि अपना नाम भी बताएं तो और अच्छा रहेगा। एक जी सर, माइक आप तक पहुंचाएं। आप प्लीज खड़े हो जाएं तो माइक आप तक पहुंच सके। मैं राजीव चतुर्वेदी, अतुल जी का आप मेरी पत्नी के भाई हैं। सारी खुदाई एक सर, आपको इस रिश्ते से सवाल पूछने का हक तो नहीं होता, लेकिन आज आपने पूछ ही लिया।
जी जी सर, आप तक माइक पहुंच गया? ओके प्लीज। पहले तो चतुर्वेदी जी को पहली अपनी सियाहत और बड़ी स्याही से के लिए बहुत बहुत बधाई। और मैंने थोड़ी से 2-4 पेज पढ़े, उससे मुझे ये लगा, और आपकी बातों से जैसे आप नरेट कर रहे थे तो मुझे तो एक चीज़ समझ में आई। मैं भी बिजनेस प्रोफेशनल रहा हूँ, बहुत सारी एमएनसीज में काम किया है और बहुत सारा मेरा भी ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस रहा है। मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से आता हूँ। तो अगर इसका नैरेटिव मिल जाता है आपकी पुस्तक का कि अगर हम काम के बाद में हम सुख की तलाश करें, खुशी की तलाश करें, तो अगले दिन हम खुशी खुशी काम की तलाश करें। वाह, जो नैरेटिव है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बधाई है सर। और दूसरा मैं चाहूँगा सर कि जैसे आपने ये क्या फर्स्ट एडिशन रहेगा, पहला रहेगा, इसके और भाग आएंगे, ये पूछना चाहूँगा। देखिए, एडिशन तो इसके निश्चित और आएंगे, मुझे पूरा यकीन है कि बहुत लोग इसको पढ़ेंगे। इसका आप शायद इसके सीक्वल की बात कर रहे हैं, भाग 2 की बात कर रहे हैं जी। तो मुझे लगता है कि अतुल जी ने बताया है रास्ते में कि ये पहली पुस्तक नहीं है। और मथुरा एंड आगरा इज नोन फॉर द चतुर्वेदी फैमिली, जी, तो उसकी क्या छाप और देखने को मिलेगी? मैं भी पढ़ने हूँ। वैसे तो आजकल बोली और भाषा की भी समस्या है, फिर भी मैं यही कहूँगा इंशाअल्लाह। जी। तो अब समय समाप्त हो रहा है। अब चलिए, उनका हाथ, बस ये अंतिम प्रश्न है सर, आप पूछ लीजिए। मैं सबसे पहले तो चतुर्वेदी जी को बधाई देना चाहूँगा, और एक पदभार ग्रहण करने के नाते, इलाहाबाद पुरातत्व संगठन के सचिव होने के नाते, आप अपना शुभ नाम भी बता दें, अपना शुभ नाम भी बता दें। मैं डॉक्टर आर.के. श्रीवास्तव हूँ। जी, और मैं ये कहना चाहूँगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने बहुत से विद्वान, बहुत साहित्यकार और मूर्धन्य लोगों को जन्म दिया है, और उसकी कड़ी में अतुल चतुर्वेदी जी भी एक नाम रहे। बहुत अच्छी बात। तो इस तरह से इस कार्यक्रम के हम लोग अब इसको कंक्लूड करेंगे, और मैं आग्रह करूंगा अर्पित चतुर्वेदी जी से कि वो मंच पर आए और वोट ऑफ थैंक्स प्रस्तुत करें। और आने वाले समय में मैं चाहूँगा कि आपके अपने वर्ड्स, आपके थॉट्स हमारी सभी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बने। बीइंग एल्डर ऑफ द फैमिली, अतुल जी हम सभी फैमिली के लिए एल्डर हैं, और आने वाली पीढ़ी और आने वाली जनरेशन के लिए एक मार्ग या एक रास्ता आपने बताया है हम लोगों को कि आगे भी हम आने वाली जनरेशन्स इस टाइप की बुक्स, अपने थॉट प्रोसेस और लिख सकें। और इसी के साथ मैं विद कंबाइंड हम सभी फैमिली मेंबर्स इनको धन्यवाद देते हैं। बहुत बढ़िया सर, अर्पित को आपने सख्त मना किया था कि आप लास्ट में थैंक्स गिविंग आप नहीं करोगे, क्योंकि आप बहुत लंबा बोल दोगे। मैं लंबा नहीं बोलने जा रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाह रहा हूं कि एक मेरे छोटे भाई अभिनव, इस जर्नी को, इस किताब को लिखा मैंने है, लेकिन सारी लड़ाइयाँ, सारा एक्सपोर्ट का काम सब में अभिनव मेरे साथ टांग से टांग बांध के थे। आज उनको यहाँ होना था, लेकिन उन्हें तेज बुखार आ गया है, इसलिए वो नहीं है। लेकिन ये किताब मेरी है, जर्नी हम दोनों की है। दूसरी चीज़, मेरी फैमिली, मेरी बहन, उनके हस्बैंड, बच्चे, मेरे बच्चे और मेरे पेरेंट्स जो कि कोरोना में नहीं रहे, उन्होंने और मेरे ग्रैंडफादर ने, मैंने किताब में लिखा भी है, और मैं आपसे अर्ज़ करूंगा कि और कुछ पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन ये ज़रूर पढ़िएगा, मैं बताऊंगा नहीं अभी, पढ़िएगा ज़रूर कि मेरी हिम्मत कैसे हुई किताब लिखने की, मेरे ग्रैंडफादर ने क्या कहा था। बाकी मेरी डॉटर इन लॉ, मेरे बेटे बेटी, भाई बहन सब, और आखिर में मैं अपनी वाइफ को धन्यवाद इसलिए नहीं दूंगा कि उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद कि ऐसा जीवन साथी दिया। अब अर्पित थैंक्स दे सकते हैं। आप सभी को धन्यवाद, दोस्तों को, मित्रों को, जो लोग आए। रचना ऊपर आके भी नमस्ते कर दो, थैंक्स तो कोई बात नहीं। सबको धन्यवाद। और आप लोगों ने, प्रोफेसर पुष्पेश पंजी ने, सुनीता जी ने, अनुपम जी ने, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब को और प्रकाशक महोदय को विशेष धन्यवाद, क्योंकि आगे और किताबें भी लाऊंगा। थैंक यू।
गंगानाथ झा छात्रावास इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और कॉल्विन तालुकेदास कॉलेज के साथी जो यहाँ आए उनको बहुत धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर थरूर ने हिंदी में बोला तो मैं बैलेंस करने के लिए इंग्लिश में अपना वोट ऑफ थैंक्स दे देता हूँ। फिरोजाबाद के साथी इतनी दूर आए उनको भी धन्यवाद। हाँ, हालांकि उसमें मामा वगैरह विकास, हालांकि मैं आपको पहले बता दूं कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, तो ये हिंदी अवॉइड करने के लिए नहीं है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग थैंक यू टू द पब्लिशर्स मिस्टर अशोक महेश्वरी एंड मिस्टर अमोघ महेश्वरी, to all of the panelists, Dr. Shashi Tharoor, Dr. Pushpesh Pant, Ms. Sunita Dwivedi, Dr. Hiram Chaturvedi, my Fufaji, Dr. Apurv Chaturvedi, Mr. Anupam Trivedi. Big thank you. Big thank you to our moderator, Mr. Chandrasekhar Verma, who made a special trip for this. And to all of the members of the audience, I know कई लोगों को हम लोग ने लास्ट मोमेंट पे बुलाया एक्चुअली। इनफैक्ट मेरे प्रोफेसर डॉक्टर कौशिक बासु यहाँ पे मैं उनको बुलाना चाहता था, और उनकी वाइफ प्रोफेसर अलका बासु मुझे आज यहाँ पे मिल गई अनप्लान्ड, एंड शी वाज काइंड इनफ टू एक्सेप्ट आवर इनविटेशन एंड कम हियर एज वेल। उनके लिए मेरा भी विशेष धन्यवाद है मैडम। एंड बहुत लोग जिन लोगों को साथ में हम लोग चाहते थे कि यहाँ पे हों, कई लोग लास्ट मोमेंट की प्लानिंग की वजह से नहीं आ पाए, बट थैंक यू सब लोग जो कि आए। एंड आई होप दैट दिस बुक बिकम्स अ बिग सक्सेस, एंड आई होप दैट वी सी मेनी मोर बुक्स कमिंग। सो थैंक यू सो मच। और एक राजनीतिक संगठन है, इसलिए नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरे कई साथी ओवैस भाई, नवनीत वगैरह खड़े हैं, सप्रा जी, उन सबका भी बहुत धन्यवाद।